یہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ راز ہے جس نے صدیوں سے دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ایک مقدس صندوق جسے تاریخ تابوت سکینہ کے نام سے جانتی ہے اور جو 2500 سال سے انسانی نظروں سے اوجھل ہے۔ لوگوں نے اس کا ذکر سنا، لوگوں نے اس کی تلاش کی کہانیاں بھی سنی، لیکن آج ہم صرف تلاش کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم اس راز کے قریب جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صندوق کے اندر آخر کیا تھا جس نے اسے دنیا کی سب سے پراسرار نشانی بنا دیا۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی سب سے مقدس علامت تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت 247 میں اس کا واضح ذکر ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے بادشاہ کے انتخاب پر سوال کیا، ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا گیا؟ یہ طالوت کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم سے زیادہ مالدار بھی نہیں۔ سن لو، اللہ نے خود طالوت کو تمہارا بادشاہ منتخب کیا ہے۔ یہ فیصلہ آسمان سے آیا ہے، زمین سے نہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی یادگاریں ہوں گی، اور اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ تابوت کوئی عام صندوق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح علامت تھا۔ اور یہیں سے یہ کہانی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ سکینہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ وہ روحانی سکون تھا جو اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہوتا تھا۔ جب یہ تابوت میدان جنگ میں ہوتا تو خوف ختم ہو جاتا، دل مضبوط ہو جاتے اور حوصلہ نئی جان پا لیتا۔ اسی وجہ سے اس صندوق کا نام پڑا تابوت سکینہ، یعنی وہ صندوق جس کے ساتھ سکون نازل ہوتا تھا۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں صرف سکینہ ہی نہیں تھی، بلکہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی مقدس یادگاریں بھی محفوظ تھیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف بڑھتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تابوت بنایا کس نے؟ مفسرین کی اس بارے میں 2 آراء ملتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر حکم ملا کہ یہ تابوت تیار کروائیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، یہ شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ شمشاد کی لکڑی اس لیے منتخب کی گئی کہ وہ مضبوط ہوتی ہے، وقت کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے، اور اس پر نفیس نقش و نگار آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ تورات کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکڑی کا تابوت ایک سنہری خول میں رکھا جاتا تھا، جس پر فرشتوں کے پروں کی صورتیں بنی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جا رہے تھے تو یہ تابوت ہر لمحہ ان کے ساتھ تھا۔ سفر میں اسے اٹھا کر ساتھ لے جایا جاتا اور قیام کے وقت اس کے لیے الگ خیمہ نصب کیا جاتا، جسے کہا جاتا تھا ہولی ٹینٹ۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت سلیمان کا دور آیا۔ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تو اس کے مرکز میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا، قدیش قداشین، یعنی ہولی آف ہولیز، اور یہی کمرہ بن گیا تابوت سکینہ کا ہمیشہ کا مسکن۔ اور اب سوال یہ ہے، تابوت کے اندر آخر کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں موجود سب سے پہلی مقدس نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ کی تختیاں۔ یہ تختیاں تورات نہیں تھیں، بلکہ وہ بنیادی احکامات تھیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہی احکامات کو بنی اسرائیل آج بھی 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ بعد میں تورات نازل ہوئی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے مکمل قانون اور شریعت بیان کی گئی۔ اسی لیے تابوت سکینہ میں محفوظ چیز کوئی پوری کتاب نہیں تھی،
बल्कि अल्लाह की तरफ से अता किए गए असल अहकामात की तख्तियां थीं। अब सवाल यह है, ये तख्तियां किस चीज़ की बनी थीं? मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। कुछ इन्हें ज़ुमुर्रद से जोड़ते हैं, कुछ कहते हैं ये याकूत से बनी थीं और कुछ कहते हैं पत्थर से। कुरान में अलवाह यानी एक से ज़्यादा तख्तियों का जिक्र आता है, इसीलिए ये भी मुमकिन है कि ये तख्तियां मुख्तलिफ माद्दों से बनी हों। रिवायात में ये भी आता है कि जब ये तख्तियां अता हुईं तो हज़रत मूसा तहरीर की आवाज़ तक सुनते थे, और ये तहरीर यूं नुमायां थी जैसे मेहर का नक्श। ये तख्तियां सिर्फ तारीख़ी यादगार नहीं थीं, ये दरअसल अल्लाह के पैगाम की असल बुनियाद थीं, और यही वजह थी कि ताबूत सकीना का मकाम सबसे बुलंद समझा जाता था। इस ताबूत में दूसरी अहम चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। इब्तिदा में ये एक आम लाठी थी, सफ़र में सहारा और बकरियों के लिए शाखें झाड़ने का ज़रिया। फिर कोहे तूर पर अल्लाह का हुक्म आया कि इसे ज़मीन पर डाल दो, और वो असा अचानक एक जिंदा सांप बनकर हरकत में आ गया। उस ज़माने में सांप इक़्तिदार की सबसे बड़ी अलामत था। फ़िरौन के ताज पर सांप का निशान होता था, ये ऐलान कि हुकूमत देवताओं के साये में है। तो जब हज़रत मूसा का असा सांप में बदला तो ये फ़िरौन के लिए उसी की ज़बान में दिया गया पैगाम था, असल ताकत तुम्हारे पास नहीं, असल ताकत अल्लाह के पास है। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, ये एक अलामती ऐलान था। फिर यही असा तारीख़ के बड़े मौजिज़ात का ज़रिया बना। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और लकड़ियाँ फेंकीं जो देखने में सांप लगीं। मूसा को हुक्म हुआ कि अपना असा डालें, तो वो एक अजीम अज़दहा बन गया और जादूगरों के तमाम फ़रेब निगल गया। फिर वो अज़दहा दोबारा अपनी असल हालत में असा बन गया। जादू की समझ रखने वाले फौरन जान गए कि ये जादू नहीं हो सकता, क्योंकि जादू में हकीकत नहीं बदलती। इसीलिए वो सजदे में गिर गए और हक को पहचान लिया। फिर इसी असा से एक और अजीम मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। जब बनी इसराइल के सामने समंदर आ खड़ा हुआ तो अल्लाह के हुक्म से असा मारा गया और समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दोनों तरफ यूं खड़ा हो गया जैसे दीवारें। ये कोई कुदरती अमल नहीं था, ये एक वाज़ेह मौजिज़ा था। फिर सहरा में जब बनी इसराइल ने पानी मांगा तो हुक्म हुआ पत्थर पर असा मारो, और उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, हर कबीले के लिए एक। यही वो असा था जो बाद में ताबूते सकीना में तख्तियों के साथ महफूज रखा गया। और अब हम बात करते हैं तीसरी मुक़द्दस निशानी की। वो थी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी। जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, क़ियादत वाज़ेह थी, लेकिन उनके बाद 12 कबाइल में इख्तिलाफ पैदा हो गया। सवाल ये था कि ताबूत सकीना की खिदमत सिर्फ लावियों के पास क्यों रहे। चुनाचे फैसला हुआ कि हर कबीले का सरदार अपनी छड़ी ले आएगा, और जिसकी छड़ी अल्लाह की निशानी बनेगी वही कबीला इस मुक़द्दस खिदमत का हकदार होगा। ये वो लम्हा था जहां से एक और इलाही फैसला सामने आने वाला था। चुनाचे फैसला हुआ, तमाम कबाइल के सरदार और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी अपनी छड़ियाँ एक जगह रखेंगे। जिसकी छड़ी में अल्लाह की निशानी ज़ाहिर होगी वही कबीला इस मुक़द्दस जिम्मेदारी का हकदार समझा जाएगा। और फिर एक लम्हे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी फूट पड़ी। इस पर पत्ते निकले, फिर कलियां बनी, फिर फूल खिले, और आखिरकार इसी छड़ी पर बादाम लग गए। ये महज एक मंजर नहीं था, ये एक ऐलान था कि हज़रत मूसा के बाद रूहानी क़ियादत और ताबूत सकीना की खिदमत हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के पास ही रहेगी। इसीलिए ये छड़ी भी ताबूत सकीना में महफूज कर दी गई। अब हम बढ़ते हैं ताबूत सकीना की अगली मुक़द्दस निशानी की तरफ, मन का बर्तन। कुरान पाक में बताया गया कि बनी इसराइल पर अल्लाह की ख़ास नेमतों में मन और सलवा भी शामिल थे। मन वो रिस्क था जो सुबह के वक्त ज़मीन पर उतरता, सफ़ेद,
शहद से ज्यादा मीठा और गैर मामूली तौर पर लतीफ। लोग इसे जमा करते और यही उनकी रोजी बनता। ताबूत सकीना में सलवा नहीं बल्कि मन का एक हिस्सा बतौर निशानी रखा गया, ताकि ये याद रहे कि ये वो रिस्क था जो आसमान से उतरा था। और अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल होती है। अब हम ताबूत के अंदर से निकलकर उसकी गुमशुदगी की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से असल मुअम्मा शुरू होता है। रिवायात बताती हैं ताबूत सकीना 2 मरतबा गुम हुआ। एक वक्त आया जब बनी इसराइल ने ताबूत को अल्लाह की निशानी के बजाय एक जादुई ताकत समझना शुरू कर दिया। ये ख्याल पुख्ता हो गया कि जब तक ये हमारे पास है हम नाकाबिले शिकस्त हैं। चुनाचे एक जंग में उन्हें शिकस्त हुई और दुश्मन ताबूत छीन कर ले गया। उन्होंने इस मुक़द्दस संदूक की बेहुरमती की, उसे अपने बुत के कदमों में रख दिया। लेकिन अगली सुबह मंजर बदल चुका था। बुत औंधा पड़ा था और ताबूत अपनी जगह से हटा हुआ था। इसी इलाके में खौफ और मुसीबतें फैलने लगीं। आखिरकार उन्होंने ताबूत को 2 बैलों वाली गाड़ी पर रखा और शहर से बाहर छोड़ दिया, और अल्लाह के हुक्म से वो गाड़ी ताबूत को वापस ले आई। यही वापसी तालूत की बादशाहत की निशानी बनी, जैसा कि कुरान हमें बताता है। ये थी पहली गुमशुदगी, जिसमें सबक भी मिला और निशानी भी। लेकिन फिर आई दूसरी गुमशुदगी, और ये वो गुमशुदगी थी जो आज तक हल नहीं हो सकी। तकरीबन 2500 साल से यहूदी इस ताबूत को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई यकीनी सुराग नहीं मिला। ताबूत सकीना में 5 निशानियां थीं: हिदायत, मौजिज़ा, इंतखाब, रिज़्क़ और सुकून। फिर शहर जले, हैकल गिरे और तारीख खामोश हो गई। तब से ये संदूक कभी सुरंगों में ढूंढा गया, कभी सलीबियों से जोड़ा गया, कभी इथियोपिया की दीवारों में और कभी एक गुमशुदा पहाड़ की गार में। लेकिन एक बात हमेशा मुश्तरक रही: ताबूत का जाहिर होना इंसान के इख्तियार में नहीं। दोस्तों, हमने ताबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश की, तारीख में, रिवायात में और थियरीज में। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि असल ताकत किसी संदूक में नहीं, बल्कि उस रब के हाथ में है जो सकीना नाजिल करता है। और जब वो चाहे, राज खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम तारीख के इन पोशीदा राजों को मिलकर तलाश करते रहें।